Hello students, welcome to online study, English medium, subject English. Grafalco Grammar Standard 8 Conditional Clauses. So dear students, first of all let's understand conditional clauses. Conditional clauses, chapter 16. You already learned about clauses in your ago session or ago chapters. Now here you have to study about the conditional clauses. So clauses means you know very well that there is a group of words which have a complete meaning. That is the clause. Now conditional clauses, it means sentence is, in your sentence there is a one condition given after comma or before comma. So in conditional clause is a kind of verbal clause in which one half of the sentence indicates a condition while the other half gives the result of the condition if it was fulfilled. What is the main identification of this conditional clause is, dear students, in conditional clause there are two sentences given. It means mainly one sentence, but there is a two parts of one sentence. One part it's your condition and second part it's your result. So there is a conditional part, it's identified as a conditional clause and rest of sentence it's your result. So look at the example, if you help me I will help you too. Look at here, there is a one sentence only, but there is a two parts in one sentence after comma and before comma. Look at here. So condition क्या है कि अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, तो ये कंडीशनल क्लॉज है. इफ यू हेल्प मी दैट इज योर कंडीशनल क्लॉज एंड आई विल हेल्प यू दैट इज द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन. Let's go ahead with the exercise. Underline the conditional clauses in the following sentences, the main clause, and write them in the table given below. What we have to do here, dear students, we have to underline conditional clause in the following sentences. So first of all we have to read this sentence, try to understand it, and later on we have to separate the conditional clause and main clause. So basically it's a very easy to identify condition in the sentence. There is a one sentence only in your question, but two parts in one sentence. It means one sentence divided into two parts. One is your condition and second one is your result. So look at the first one. If you wish to take initiatives, you should be ready to bear the risk as well. अगर आप इनिशिएटिव्स को लेना चाहते हो तो आपको रिस्क उठाने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा. सो कंडीशन कौन सी है? इफ यू विश टू टेक इनिशिएटिव्स. और मेन क्लोज क्या है? यू शुड बी रेडी टू बियर द रिस्क एज वेल. सेकंड वन, नो टीवी चैनल कैन बी परफेक्ट अनलेस इट मेक्स द ऑडियंस लाइव थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ इट्स प्रोग्राम्स. सो which is the condition? Unless it makes the audience live through the experience of its TV programs. That is the conditions. कोई भी टीवी चैनल परफेक्ट नहीं है. ये क्या है? रिजल्ट. नो टीवी चैनल कैन बी परफेक्ट. कोई भी टीवी चैनल परफेक्ट नहीं है, ये रिजल्ट है. अनलेस इट मेक्स द ऑडियंस लाइव थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ इट्स प्रोग्राम्स. जब तक या तो जो टीवी चैनल है वो जब तक अपने ऑडियंस को लाइव प्रोग्राम का एक्सपीरियंस नहीं करवाती. सो दिस इज दी कंडीशनल क्लॉज आफ्टर अनलेस. यू शुड अक्वायर न्यू स्किल्स इफ यू विश टू फील ग्राउंडेड. आपको न्यू स्किल्स की
जरूरत है, यू शुड एक्वायर, आपके अंदर न्यू स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। इफ यू विश टू फील ग्राउंडेड, अगर आप ग्राउंडेड फील करना चाहते हो तो आपके अंदर न्यू स्किल्स है वो डेवलप करनी चाहिए। सो व्हाट इज द कंडीशनल क्लॉज? इफ यू विश टू फील ग्राउंडेड, एंड मेन क्लॉज इज यू शुड एक्वायर न्यू स्किल्स। 4 नंबर, यस डेकर विल कॉन्टेक्ट यू इफ ही गेट्स टाइम। हाँ, डेकर है वो आपका कांटेक्ट करेगा अगर उसको टाइम मिलेगा। सो कंडीशन कौन सी है? इफ ही गेट्स टाइम, अगर उसको टाइम मिलेगा तो डेकर है वो आपका कांटेक्ट करेगा। तो ये उसका रिजल्ट है। यस डेकर विल कॉन्टेक्ट यू, दैट इज द रिजल्ट। सो दिस इज द मेन क्लॉज। 5 नंबर, you cannot enter the unit unless you wear a proper uniform. You cannot enter the unit unless you wear a proper uniform. अगर आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो आप यूनिट के अंदर एंटर नहीं हो सकते हो। सो विच इज द कंडीशनल क्लॉज? अनलेस यू वेयर अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, अगर आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो आप यूनिट के अंदर एंटर नहीं हो सकते हो। सो दिस इज द कंडीशनल क्लॉज, अनलेस यू वेयर अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, एंड मेन क्लॉज इज यू कैन नॉट एंटर द यूनिट। 6 नंबर, आई कैन नॉट हेल्प यू अनलेस यू टेल मी एवरीथिंग। मैं तुझे तब तक हेल्प नहीं करूंगा जब तक तू मुझे सब कुछ नहीं बताएगा। सो विच इज द कंडीशन? अनलेस यू टेल मी एवरीथिंग, जब तक तू मुझे सब कुछ नहीं बताएगा मैं तुझे हेल्प नहीं करूंगा। सो दिस इज द कंडीशनल क्लॉज, अनलेस यू टेल मी एवरीथिंग, एंड मेन क्लॉज इज आई कैन नॉट हेल्प यू। 7 नंबर, डू नॉट लीव अनलेस आई गेट रेडी। जब तक मैं रेडी नहीं हो जाता मुझे छोड़ के मत जाना। सो विच इज द कंडीशन? जब तक मैं रेडी नहीं हो जाता, अनलेस आई गेट रेडी, जब तक मैं रेडी नहीं हो जाता मुझे छोड़ के मत जाना। सो डू नॉट लीव इज मेन क्लॉज। 8 नंबर, इफ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव यू शुड चेंज योर करियर प्लान्स। अगर आपके पेरेंट्स डिसअप्रूव करते हैं तो आपको अपने करियर का जो प्लान है उसको चेंज करना चाहिए। सो विच इज द कंडीशन? इफ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव, so this is the conditional clause, and you should change your career plan, that is the main clause. 9 number, what do you plan to buy if you get your first salary? आपका क्या खरीदने का प्लान है अगर आपको अपनी फर्स्ट सैलरी मिल जाएगी तो? सो विच इज द कंडीशन? इफ यू गेट योर फर्स्ट सैलरी, अगर आपको अपनी फर्स्ट सैलरी मिलती है तो आपको क्या खरीदने का प्लान है? तो कंडीशनल क्लॉज कौन सा है? इफ यू गेट योर फर्स्ट सैलरी, दिस इज द कंडीशनल क्लॉज, एंड मेन क्लॉज, व्हाट डू यू प्लान टू बाय, दिस इज द मेन क्लॉज। 10 नंबर, you cannot join the street party unless you participate in the marathon race. अगर आप मैराथन रेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आप स्ट्रीट पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। सो इसमें कंडीशन कौन सी है? अनलेस यू पार्टिसिपेट इन द मैराथन रेस, अगर आप मैराथन रेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, दिस इज द कंडीशनल क्लॉज, एंड मेन क्लॉज इज यू कैन नॉट ज्वाइन द स्ट्रीट, आप स्ट्रीट पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हो, दिस इज द मेन क्लॉज। नाउ लुक एट हियर द टेबल, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन ए एक्सरसाइज। कंडीशनल क्लॉज एंड मेन क्लॉज को दोनों को सेपरेट किया है। सो फर्स्ट नंबर का जो सेंटेंस था, इफ यू विश टू टेक इनिशिएटिव्स, so this is the conditional clause, and rest of sentence you should be ready to bear the risk as well, that is the main clause that I already explained you. Unless it makes the audience live through the experiences of its programs, this is the conditional clause, and no TV channel can be perfect, that is the main clause. If you wish to feel grounded, look at here, very easy way to identify conditional clause. if and unless के बाद का जो sentence है वो पूरा केस में आएगा conditional clause में, because if and whether, if, whether, unless ये सब कुछ क्या दिखाता है? condition दिखाता है।
Next one, if you wish to feel grounded, that is the conditional clause, and you should acquire new skill, that is the main clause. If he gets time, conditional clause, just Decker will contact you, that is the main clause. Unless you wear a proper uniform, that is the conditional clause, you cannot enter the unit, that is the main clause. Next one, unless you tell me everything, conditional clause, I cannot help you, main clause. Unless I get ready, conditional clause, do not leave, main clause. If your parents disapprove, conditional clause, you should change your career plans, that is the main clause. If you get your first salary, that is the conditional clause, what do you plan to buy, main clause. Unless you participate in the marathon race, that is the conditional clause, and you cannot join the street party, that is the main clause. Now let's go ahead with the B number exercise. Dear students, in this B number exercise, you will have to rewrite the following sentences using the conditional clause. It means there is a simple sentence given here that we will have to convert into conditional sentence. It means if, whether और unless का इस्तेमाल करके हमें सेंटेंस को रीराइट करना है. It means सेंटेंस के जो दो पार्ट्स दिए हैं अलग अलग. लुक एट हियर इन द फर्स्ट वन, यू वांट टू लिव, यू शुड ईट. तो उसमें हमें एक को कंडीशन बनाना है और एक को रिजल्ट में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट वन, यू वांट टू लिव, यू शुड ईट. अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो आपको खाना चाहिए. सो इफ यू वांट टू लिव, यू शुड ईट. अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो आपको खाना चाहिए. सेकंड वन, we must not make human clones, it will degrade the sanctity of human life. हमें ह्यूमन क्लॉथ्स नहीं करने चाहिए क्योंकि ये हमारी ह्यूमन लाइफ की जो सैंक्टिटी है, वैल्यू है, उसको डाउन करता है. सो हियर द कंडीशनल क्लॉज इज इफ वी मेक ह्यूमन क्लोन्स. अगर हम ह्यूमन क्लोन्स करते हैं तो वो हमारी ह्यूमन लाइफ की जो सैंक्टिटी है, जो वैल्यू है, उसको डाउन करता है. थर्ड वन, I wish to paint my face with the British flag. The paint should be of good quality. मैं मेरे फेस को ब्रिटिश फ्लैग से पेंट करना चाहता हूँ, पर वो जो पेंट है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए. सो आई डू नॉट विश टू पेंट माई फेस. मैं मेरे फेस को पेंट करना नहीं चाहता हूँ, ब्रिटिश फ्लैग से मैं पेंट करना नहीं चाहता हूँ. अनलेस द पेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी. अगर पेंटिंग है वो गुड क्वालिटी का नहीं है तो मैं मेरे फेस को ब्रिटिश फ्लैग से पेंटिंग नहीं करना चाहता हूँ. सो कंडीशनल क्लोज इसमें कौन सा हुआ, अनलेस द पेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी. इसमें इफ वी मेक ह्यूमन क्लोज, दैट इज अ कंडीशनल क्लोज. इसमें इफ यू वांट टू लिव, दैट इज द कंडीशनल क्लोज. 4 नंबर, ही हेल्ड द बलून्स टाइटली, दे पॉप्ड वन बाय वन. उसने बलून्स को टाइटली पकड़ा, फिर भी वो वन बाय वन फूट गए. He held the balloons tightly until they popped one by one. उसने बलून्स को टाइटली तब तक पकड़ के रखा जब तक वो वन बाय वन फूट नहीं गए. 5 नंबर, Drake will present a bouquet of flowers to the guest. Drake should be dressed in a suit. Drake है वो गेस्ट के सामने जो फ्लावर का बुके था उसको लेके गया, उसको प्रेजेंट किया. ड्रेक शुड बी ड्रेस्ड इन अ सूट. ड्रेक है उसको सूट पहनना चाहिए. इफ ड्रेक प्रेजेंट अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू द गेस्ट, ही शुड बी ड्रेस्ड इन अ सूट. अगर ड्रेक है वो गेस्ट के सामने फ्लावर का बुके लेके प्रेजेंट होता है तो उसको क्या पहनना चाहिए, सूट पहनना चाहिए. तो कंडीशन कौन सी है, इफ ड्रेक प्रेजेंट अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू द गेस्ट. अगर ड्रेक है वो फ्लावर का बुके लेके गेस्ट के सामने जाता है तो उसको इसको सूट पहननी चाहिए. 6 नंबर, वी शैल गो टू केन्या नेक्स्ट मंथ, द वेदर शुड बी कूल. हम लोग नेक्स्ट मंथ केन्या जाएंगे अगर वेदर कूल होगा. इफ द वेदर इज कूल, अगर वेदर है वो ठंडा होगा, कूल होगा, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ केन्या जाएंगे. सो कंडीशनल क्लॉज कौन सा है, इफ द वेदर इज कूल.
7 number, the winner will get tickets to OVA. The winner should be have a passport. विनर है उसको ओवा की टिकट है वो मिलेगी. द विनर शुड हैव अ पासपोर्ट. अगर विनर के पास क्या होगा? पासपोर्ट होगा. सो द विनर विल नॉट गेट टिकट्स टू ओवा. विनर है उसको ओवा की टिकट नहीं मिलेगी अनलेस ही हैज अ पासपोर्ट. अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं होगा. सो विच इज द कंडीशनल क्लोज? अनलेस ही हैज अ पासपोर्ट. अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो विनर को ओवा की टिकट नहीं मिलेगी. 8 नंबर, फायर शुड नॉट बी फोर्ट विथ फायर. दिस विल बर्न द होल वर्ल्ड. फायर है वो फायर के साथ कभी नहीं लड़ती है. वो क्या करती है? वो पूरी दुनिया को जला देती है. इफ द फायर इज फोर्ट विथ फायर, अगर फायर है वो फायर के साथ लड़ती है, द होल वर्ल्ड विल बर्न. पूरा वर्ल्ड है वो उसमें जल जाता है. 9 नंबर, आई वुड हैव बॉट दिस अपार्टमेंट. इट्स एलिवेटर शुड बी फास्टर. मैंने ये अपार्टमेंट को खरीदा है और इसका जो एलिवेटर है वो फास्टर होना चाहिए. आई वुड हैव बॉट दिस अपार्टमेंट. मैंने ये अपार्टमेंट को खरीदा है. इफ इट्स एलिवेटर वॉज फास्टर. अगर इसका एलिवेटर फास्ट होगा तो मैंने इसको खरीदूंगा, यानी कि मैं इसका जो अपार्टमेंट है उसको खरीदूंगा. सो विच वन इज द कंडीशनल क्लोज? इफ इट्स एलिवेटर वॉज फास्टर. अगर इसका एलिवेटर है वो फास्टर होता तो मैं इसको खरीदता. सो कंडीशनल क्लोज इज इफ इट्स एलिवेटर वॉज फास्टर. एंड रेस्ट ऑफ सेंटेंस, आई वुड हैव बॉट दिस अपार्टमेंट. दिस इज द मेन क्लोज. 10 नंबर, थिंग्स आर रिफंडेबल एट द स्टोर. यू कैन बाय फ्रॉम हियर. ये स्टोर है वहां पे थिंग्स है वो रिफंडेबल है. यू कैन बाय फ्रॉम हियर. आप यहाँ से खरीद सकते हो. थिंग्स आर रिफंडेबल एट द स्टोर ओनली इफ यू बाय फ्रॉम हियर. ये स्टोर पे थिंग्स है वो रिफंडेबल है अगर आप चीज को यहीं से खरीदोगे तो कंडीशनल क्लोज कौन सा है? इफ यू बाय फ्रॉम हियर. अगर आप यहाँ से खरीदते हो तो. 11 नंबर, even an ant can defeat an elephant. You should only have sufficient will power. Even एंट है ना, चींटी होती है ना, वो भी एलिफेंट को, हाथी को हरा सकती है, गज को हरा सकती है. She should only have sufficient will power. उसके पास सिर्फ एक इनफ विल पावर होना चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए. इवन एन एंट कैन डिफीट एन एलिफेंट. इवन एंट है वो भी एलिफेंट को हरा सकती है अगर उसके पास इनफ विल पावर हो तो. सो विच इज द कंडीशनल क्लोज? इफ शी हैज सफिशिएंट विल पावर. दिस इज द कंडीशनल क्लोज. गुलिवर वॉन्टेड टू ट्रैवल अगेन. गुलिवर है वो वंस अगेन ट्रैवलिंग करना चाहता है. ओनली हिज फैमिली शुड ग्रांट हिम परमिशन. सिर्फ उसकी फैमिली उसको परमिशन दे सकती है. गुलिवर वॉन्टेड टू ट्रैवल अगेन. गुलिवर है वो वापस से ट्रैवलिंग करना चाहता है. ओनली इफ, ओनली सिर्फ उसकी फैमिली है वो परमिशन दे तो. सो विच इज द कंडीशनल क्लॉज? if his family would grant him permission. This is the conditional clause. And rest of sentence, Gulliver wanted to travel again. That is the main clause. So dear students, I already told you conditional clause is separated from the main clause. At that time, how you have to identify very easily. In your sentence, there is a two parts given. It means one sentence divided into two parts. At that time, in this part, if any parts started with if, unless, whether, until, it means that is your conditional clause. And second, rest of sentence, it's your result. It means result of the condition. So in the same way, you will have to identify conditional clause and main clause. So here explanation of this chapter is over, students. Thank you.